नमस्ते। नमस्ते। ओम बहन। शांति। ओम शांति। We start with a prayer. आज हम एक प्रार्थना से प्रारंभ। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते बहन जी। नमस्कार। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से मैं आपको इस कोर्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत है। आपको परिचय करने से पहले मैं आपको अभिनंदन करना चाहता हूँ। पिछले 5 साल हमारा इंस्टीट्यूट ने जो कर्टन राइजर करते आए हैं, हर कर्टन राइजर में ब्रह्म कुमारी जी, विशेष तौर पर आशा दीदी का उपस्थिति हमेशा हमें मिलती रही है। इसके लिए आपको पूरा आपका ये ऑर्गेनाइजेशंस को मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी सी आपका इतना बड़ा परिचय है, मैं कुछ ही शब्दों में आपका परिचय अपना आज श्रोताओं को, अभी वीक्षकों को मैं देना चाहता हूँ। आज हमारे सामने हैं सिस्टर आशा जी, गिफ्टेड विथ socio-spiritual bent of mind. Sister Asha ji was brought up in a good discipline and holistic family environment. She came in contact with the Brahma Kumari's organization through her parents when she was just 9 years old. A topper and a gold medalist in MA Sociology from Bangalore University, she served as a lecturer in Mount Carmel Degree College, Bangalore. She dedicated her life in 1972 to the organization for the noble cause of building a value-based society. Asha ji, well known for her keen dedication and determination, she is a great spiritual leader, orator, and able administrator too. She represented the Brahma Kumaris from India at the United Nations Decade for Women Conference in Nairobi in 1985 itself. Sister Asha ji was selected as an outstanding young person of the world for 1989 by JICE Junior Chamber International USA for her invaluable contribution towards peace. She is one of the inspiring speakers of Brahma Kumaris and has traveled throughout India and abroad. Countries like US, she visited countries like USA, UK, Australia, Africa, and many European countries, spreading the fragments of peace and divinity. Sister Asha ji is the author of many training courses, stress management, mind management, winning over ego and anger, meditation, etc. A proficient orator, Asha ji is one of the most sought after speakers of the organization of Brahma Kumaris, who traveled worldwide through spreading the message of peace and spirituality through many national and international conferences, seminars, interfaith conventions and dialogues, radio and TV shows. Her lectures and talks are regularly telecast on television channels like Sanskara, Peace of Mind, and many more. During the last 5 years, Brahma Kumari organization, especially in Delhi,
They are completely devoted, and even they brought the change in their organization. They never teach these yogasana, pranayama, and other aspects of yoga, but their devotion, they completely follow the protocol and all the guidelines of the government of India and inculcated in their organization and in the entire Brahma Kumaris families. With this, they enrich the entire yoga community, their presence in the International Day of Yoga celebrations, and also the message of yoga is spreading through their wonderful organization. With these few words, Sister Ashaji, once again thank you for accepting our invitation to deliver a discourse. So today, and our yoga enthusiasts will be very lucky to hear you. I welcome you and request you to deliver your address. Sister Ashaji. Om Shanti. Thank you very much, Dr. Baswa Reddy, for giving this opportunity to connect with yoga aspirants, the lovers of yoga in the country. आयुष मंत्रालय के द्वारा जो ये कार्य हो रहा है सारे विश्व में, ये बहुत ही सराहनीय है। सारा विश्व एक बार इस आश्चर्य में पड़ गया है कि योग ऐसी क्या चीज है जो हमारे तन और मन को इतना स्वस्थ रख सकती है। निसंदेह ये कहा गया है कि if wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. Character is lost, everything is lost. Health आज एक इम्पोर्टेंट इशू है और ये बात देखने में आ रही है कि सारे वर्ल्ड वाइड लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं और उसमें योग को स्थान देते हैं। मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी केंद्र जो वर्ल्ड वाइड मोर देन 8,000 सेंटर्स, वे भारत के दूतावासों के साथ मिलकर के बहुत ही अहम भूमिका उन देशों में निभा रहे हैं। और इस दिन हमारी बहनों को निमंत्रण मिलता है कि आप आकर के इस विषय में कुछ बताएं। आज मुझे हर्ष है कि ऐसा विषय जिसने भारतीय संस्कृति के साथ साथ विश्व की संस्कृति को परिवर्तित किया, वो है योग, राजयोग, जो कि ब्रह्मा कुमारी हम लोग सिखाते हैं, सीखते हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो सारे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, उसके लिए भी हमारी भारत सरकार मुबारक की पात्र है। हमें खुद भी बहुत इसमें इंटॉक्सिकेशन फील होता है कि हम उस चीज के एक भाग हैं। तो योग शब्द जब हम सुनते हैं तो हमें योग का जो आदि ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवद गीता, उसकी याद आती है। और श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय में कोई ना कोई योग का वर्णन आया है और जो योग वहां पर बताया गया वो है एक ही योग, परंतु उसके डिफरेंट डिमेंशंस बताए गए हैं। उदाहरण के रूप से ज्ञान योग, ज्ञान योग अर्थात योग क्या है, उसकी विधि क्या है, कैसे परमात्मा में अपने मन को लगाना है, आदि आदि। भक्ति योग, वही योग आप डिवोशन के साथ करें, समर्पण भाव से करें, प्रेम भाव से करें, भक्ति योग। इसी रीति से है
कर्म योग। कर्म योग जो बहुत गुह्य हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि कर्म करते हुए भी अपने योगी जीवन को हमने बना करके रखना है। कर्म ही पूजा है और कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति श्रेष्ठ अथवा निम्न बनता है। सांस का लेना भी एक प्रकार का कर्म है। अतः कर्म के बिना तो व्यक्ति रह नहीं सकता। कर्म चाहे वो निष्काम है लेकिन कर्म अवश्य है। इसी रीत से एक है जिसको हम कहते हैं संन्यास योग। वास्तव में योग का अर्थ है जोड़ और संन्यास उसका विलोम है। लेकिन संन्यास किस बात का करना है? वो है अपने मन के अंदर बसी हुई नेगेटिविटी जो है उसका नाश करना, उसका संन्यास करना है। वो पुनः मेरे जीवन में ना आने पाए, इसलिए उसे कहा गया संन्यास योग। पुरुषोत्तम योग अर्थात वह योग जिससे मनुष्य जब मर्यादाओं का पालन करता है, अनुशासन का पालन करता है, तो पुरुषों में उत्तम बनता है। और जो राजयोग है, ये वह शब्द है जिसके अंतर्गत ये सब योग समा जाते हैं। राज मतलब रॉयल, जिसके द्वारा जीवन के अंदर रॉयल गुणों की धारणा आती है, जिससे चरित्र का निर्माण होता है, वह है राजयोग। अब योग में जब हम योग सुनते हैं शब्द, तो हमारे मन में तुरंत आता है ख्याल भिन्न भिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम आदि। निस्संदेह इनकी आवश्यकता है, लेकिन जब हम इनको इंटरप्रेट करते हैं मानसिक स्तर पर, उदाहरण के रूप से जब हम कहते हैं शीर्ष आसन, तो शीर्ष आसन से हम लोग ये भावार्थ लेते हैं कि अपने हेड को, अपने मन को, बुद्धि को हमें बैलेंस में रखना है। जब हम कहते हैं शव आसन, अर्थात अपने को अशरीरी अवस्था में, रिलैक्स स्टेज में, मैं इस शरीर से न्यारी आत्मा हूं, उस भाव से हम शीर्ष आसन को लेते हैं, इसी शवासन को लेते हैं। इसी रीति से जो अन्य आसन है, पद्मासन, पद्मासन अर्थात कमल आसन, जीवन में रहते हुए अपने आप को जो नेगेटिविटी रूपी कीचड़ है उससे ऊपर उठा करके जीवन जीना है। अब इसके अंदर जो विशेष चीज क्वेश्चन में आती है, योगी कौन? हमारी मान्यता है कि योगी आत्मा है जो इस शरीर की मालिक है, कर्म इंद्रियों की राजा है, मन बुद्धि संस्कार सहित है। जब तक हम स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे, तब तक योग जोड़ परमात्मा से बुद्धि योग का जुड़ना कठिन होगा। श्रीमद् भगवद गीता में आया, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी भव। अपने मन को मुझ में लगाओ, अपने मन को मुझ में लगाओ। सवाल उठता है, जिस चीज को मैं कहती हूं मेरा, मेरा मन, क्या सच में वो मन मेरा है या भटकने वाला है? अगर भटकने वाला मेरा कहना नहीं मानता, तो मेरा आधिपत्य क्या रहा? तो राजयोग में हम ये सीखते हैं कि किस रीति से अपने मन के संकल्प, और संकल्पों की वैरायटी है। कहा जाता है संकल्प से सृष्टि रची जाती है। As you think, so you become. As you think, so you create. जो आप रचना रचते हैं, वायुमंडल, वातावरण, वो आपके मन के संकल्पों के आधार से है।
हमारे कई साइंटिस्ट, स्पेशली वाटर साइंटिस्ट मिस्टर इमोटो जो जापान के हैं, उन्होंने इस बात पर रिसर्च की कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो संकल्प हैं, वो आपके वातावरण को प्रभावित करते हैं, यहाँ तक जल को भी प्रभावित करते हैं, प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, जल सामने रखा साधारण, और जब योगी सामने बैठे और उन्हें शुभ संकल्प उनके मन में उभर रहे थे, बाद में उन्होंने उस जल को टेस्ट किया और जो दूसरा साधारण सामान्य जल था उसको टेस्ट किया, तो क्या पाया? जो सामान्य जल था उसमें पोल्यूशन, और जो जल योगी के सामने रखा गया उनके शुद्ध प्रकंपनों से वो जल, उसमें क्रिस्टल्स उत्पन्न हुए। हमारी बॉडी में 85% जल है, 85% जल है। अतः अगर मेरे मन के थॉट्स श्रेष्ठ, एलिवेटेड, शुभ भावना वाले, शुभ कामना वाले, सात्विक होंगे, तो उसका प्रभाव अपने शरीर पर भी तो पड़ेगा, जो सबसे क्लोज है आत्मा के। और जब हमारा वो प्रभाव संकल्पों का शरीर पर पड़ता है, शरीर में स्वास्थ्य कहें, शरीर जो है स्वस्थ नजर आता है। और जब हमारे मन के संकल्प दूषित होते हैं, प्रदूषित होते हैं और स्वार्थ भरे, दुर्भावनाओं वाले, नकारात्मक, उसका प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है। कई रिसर्चेस हैं जो मैं आज नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अपने आप को आत्मा निश्चय करना, अपने उस स्वमान में रहना, उस स्वराज्य में रहना कि मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं और कर्म इंद्रियों की राजा हूं। हम कहते हैं माइंड को मैनेज करना है। मैं कभी कभी सवाल पूछा करती हूं, आर यू मैनेजिंग द माइंड और द माइंड इज मैनेजिंग यू? Sometimes people say, why sometimes? Always they say, sister, it is the mind which is managing us. मन में जो संकल्प उठते हैं, जो विचार उठते हैं, उस अनुसार हम अपनी दौड़ बना के रखते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बनाते हैं। लेकिन मन आत्मा की एक शक्ति है और वो मन मेरा है, और मेरा उसके ऊपर आधिपत्य ना हो तो मन मेरा कैसे हुआ? इसी रीति बुद्धि वो मेरी है, जिसको मैं मेरा कहती हूं उसके ऊपर मैं नियंत्रण भी रख सकती हूं। इसलिए जिसको हम कहते हैं दो पावर्स, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, हम अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रख सकें, ये तब होगा जब हम मन को, अपनी आत्मा को राजा की स्थिति में, राजा के आसन पर हम इसे स्थित करेंगे। अब केवल मात्र ये समझना कि मैं आत्मा हूं, आत्मा क्या है? आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योतिर्मय बिंदु है। और सच्चाई ये है कि आत्मा खराब चीज नहीं है, मन हमारा खराब नहीं है। All of us are basically very good people. हमारे अंदर शांति हमारा स्वधर्म है, प्रेम हमारा स्वधर्म है, पवित्रता हमारा स्वधर्म है। उसका लिटमस टेस्ट है। आप किसी व्यक्ति को कहिए, प्राय लोग कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, बहन जी ऐसा योग सिखाओ जिससे मेरा गुस्सा खत्म हो जाए, मेरी नेचर गुस्से की है। लेकिन असलियत जानने की ये है कि गुस्सा आपकी नेचर है ही नहीं। गुस्सा इंपोर्टेड मटेरियल है, जो बाहर से आया है, वो आपका है ही नहीं, पराया माल है।
लेकिन उसने आपके ऊपर राज्य किया हुआ है। जब आप अपने स्वमान में आ जाते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, तो शांति के वे प्रकंपन जो हम स्वयं को बारंबार देते हैं, मनोस्थिति हमारी शांतमय बनती है। और शांतमय बनने से वो जो क्रोध है वो धीरे धीरे समाप्त होता है, क्योंकि अब मैं क्रोध से काम नहीं करती हूँ, अब मैं अपनी शांति से काम करती हूँ। शांति से जहां काम होगा वहां पर हमारी अन्य चीजें जो हैं जीवन में आएंगी, सुख आएगा, सद्भावना आएगी आदि। लेकिन योग का अर्थ है जोड़। आत्मा का जोड़ किसके साथ? आत्मा का जोड़ परमात्मा पिता के साथ, जो गुणों के सागर हैं, निराकार हैं, ज्योति बिंदु हैं और सर्व गुण और सर्व शक्तियों के सागर हैं। वो हमारे पिता हैं। केवल परमात्मा के आगे हाथ जोड़ करके खड़े होने से काम नहीं चलता। प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हमने अपने आप को उनके साथ संबंध में नहीं जोड़ा है, जिसको हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम देव देव, जब तक हमने उन्हें अपने संबंधों में जोड़ा नहीं है, तब तक हमारे जीवन में जो प्राप्ति तभी हो सकती है जहां आपका संबंध है। अगर पिता के साथ बच्चे का संबंध है तो पिता का वर्षा उसे मिलता है। इसी रीति से पिता परमात्मा जो गुणों के सागर, शक्तियों के सागर हैं, वर्तमान समय की जो परिस्थितियां कोविड-19 के कारण से क्रिएट हुई हैं, उनको विल पावर से फेस करने की शक्ति कहां से आएगी? देयर इज नो जनरेशन पॉइंट जहां से हम अपने आप को कनेक्ट करें। ओनली वन, स्वयं की विल पावर, अपना मनोबल। और वो मनोबल हम बढ़ाते हैं जब हम ये अपने बुद्धि में रखते हैं परमात्मा हमारा साथी है और वो मेरा पिता है, अनादि पिता है, जन्म जन्मांतर का पिता है। As you think so you become के अनुसार जितना हमारी बुद्धि की तार उनके साथ जुड़ती है, मन मना भाव, तब परमात्मा कहते हैं मन मुझ में लगाने से मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त करूंगा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। योग में मात्र ये नहीं है, आत्मा का कनेक्शन स्वयं के साथ, आत्मा का मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ, मेरा कनेक्शन अपने साथियों के साथ और मेरा कनेक्शन प्रकृति के साथ। आज प्रकृति भी हमारे से बदला ले रही है। इस प्रकृति को भी पावन बनाने के लिए शुद्ध प्रकंपन जो प्रकृति ने हमें दिया, उसके रिटर्न में उसे धन्यवाद, उसकी मलहम करना, अर्थात जो हमने एक्सप्लॉयटेशन किया उसे रोकना। ये जितना जितना मन के अंदर संतोष बढ़ता जाता है, आंतरिक गुणों से जितना जितना हम संतुष्ट होते जाते हैं, उतना उतना हमें बाहर से कुछ और प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं होती। अतः राजयोग के द्वारा हमारे संबंध अपने साथ, हमारे संबंध औरों के साथ, हमारे संबंध प्रकृति के साथ अच्छे बनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप सब समझते हैं कि जैसे हमारा वायुमंडल और वातावरण है, इससे हम प्रसन्न नहीं हैं। आज जितने टेंशन्स हैं, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, जितने अनसर्टेनिटीज हैं, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मबल चाहिए। अगर हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। वो आएगा कहां से? वो आएगा जितना हम उस अच्छे संकल्पों में रहेंगे और जितना
हम अधिक से अधिक अपने पिता परमात्मा को साथी बना के चलेंगे, कोई भी चीज असंभव नहीं। और ये जो हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर प्रोटोकॉल ऑब्जर्व करते हैं, इस वर्ष भी हमने ये प्लान किया है कि हम प्रोटोकॉल में ओम ध्वनि और उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस इंक्लूड करेंगे। वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी बिग प्रोग्राम। हम ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, उसकी सारी तैयारी चल रही है और इंटरनेशनल लेवल पर भी चल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अंत में यूं कह करके योगी भाव, पवित्र भाव मैं समाप्त करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम शब्दों में पूरा सार हमें समझाया और इस बार हमें भारत सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री ने मेरा लाइफ मेरा योग, माय लाइफ माय योग के ऐलान किया है वीडियो ब्लॉग कॉम्पिटिशन के लिए। सो मैं निवेदन करता हूँ वहाँ आपके ब्रह्म कुमारी जी के जितने भी है ध्यान करे, कुछ भी करे, वो ब्लॉग कॉम्पिटिशन में भाग ले। दूसरा है कि हम योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है आयुष मंत्रालय के, उस दिन जो भी भाग लेंगे योग प्रोटोकॉल अभ्यास में, उनका गूगल फॉर्म भर दिया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के तरफ उनको योगा वॉलंटियर एक सर्टिफिकेट प्रदान करने की हमने ऐलान किया है। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, ये सिर्फ भारत में नहीं कई विदेशों में है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से वो भाग लिया, आपने उनको सर्टिफाई करके गूगल फॉर्म भर दिया तो ये लाखों में है, तो हम उसको ऑनलाइन डिजिटल मेरे सिग्नेचर से एक योगा वॉलंटियर सर्टिफिकेट हम इस बार देने की प्रयास किया। बच्चन रेड्डी भाई, मैं कहना चाहूंगी कि डेली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, जब से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि योगासन घर में भी बैठ करके करें, तो हमारे यहाँ से डेली वो क्लासेस चल रही हैं जो ऑनलाइन तरफ देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ, मैंने सारे देखा है बहन जी, इसलिए विशेष तौर पर 2-3 महीने से सारे हमारे योगा इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी लोगों ने योग सिखा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि वो लोग उस दिन भाग तो लेंगे, लेकिन उनका एक रिकॉग्निशन सरकार की तरफ से हो जाए, इसलिए हमने सभी शिक्षकों को भी प्लेटिनम, गोल्ड वगैरह सारे कर रहे हैं। योगा इंस्टीट्यूशन जो 10 लाख से ज्यादा फैमिली जोड़ जाते हैं, हम सरकार के हिसाब से उनको प्लेटिनम योगा इंस्टीट्यूट के एक रेटिंग देने की प्रयास किया, क्योंकि प्रोत्साहन के लिए, इससे इनका गरिमा तो बढ़े ना बढ़े, लेकिन एक रिकॉग्नाइजेशन सरकार की तरफ से हमेशा एक वैल्यू होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को भी, टीचर को भी, जो फैमिली में भाग लेते हैं योगा एट होम, योगा विद फैमिली, सो उनको भी हम एक सर्टिफिकेट देने की प्रस्ताव रखिए। वो आप सभी लोग इसमें भाग ले, जहाँ भी श्रोता हो, यहाँ श्रोताएं भाग ले रहे हैं, मैं उन लोगों को भी निवेदन करता हूँ कि माय लाइफ माय योगा ब्लॉग कंपटीशन में, और उस दिन 21 जून को सवेरे 7 बजे से 7:45 तक जो नेशन वाइड दुनिया भर में वो सेलिब्रेशन होगा, एज यूजुअल घर घर में होगा, फैमिली के साथ होंगे। उसका जो रूपरेखा है हम आने वाले कुछ ही दिनों में उसको ऐलान करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाए। इन्हीं विनती के साथ आप सभी लोगों को और आपको आशा दी थी, आपको भी मेरा धन्यवाद प्रणाम करते हुए, थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ओम शांति।